Good evening and welcome viewers. This is lecture number 4 on our lecture series on solid state physics. And in this lecture we are going to discuss about crystal structures. And we will going to find all these informations about crystal structures. You can see the various informations like what is the type of conventional unit cell of whatever crystal structure we are taking. We'll just discuss later. And we will find what are the effective number of atoms, what is the types of primitive unit cell, what is coordination number, and what is the distance of first nearest neighbor, second nearest neighbor, what is the atomic radius, and what is the atomic packing fraction, and what are the type of packing. So let us start with the various types of crystal structures. So if we try to connect this lecture from our previous lecture, so you will find that this lecture is quite independent. If you have skipped lecture number 3, so you can easily understand this lecture, because this is entirely different lecture. This lecture is all about crystal structures. So let us try to find the various informations about crystal structures. So let us start crystal structures. So depending upon the packing, अगर हम पैकिंग के ऊपर पैकिंग को बेसिस माने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैटेगराइज करने का, तो दो टाइप्स की हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली, डिपेंडिंग अपॉन पैकिंग, लूज पैक और क्लोज पैक. ठीक है, कि कितने ज़्यादा एटम्स हैं किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में और कितनी परसेंट उन्होंने वो जो यूनिट सेल का एरिया है, वॉल्यूम है, वो अक्वायर कर रखा है. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. डिपेंडिंग अपॉन पैकिंग, पैकिंग के बेसिस पे कि पैकिंग किस तरह की है, दो टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं. तो लूज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और क्लोज पैक्ड. So in case of loose packed, you know that loose packed structures are like simple cubic crystal. Second is BCC, body centered cubic. Third is diamond cubic structure. Fourth is zinc blandy structure. Fifth is cesium chloride structure. Sixth is NaCl structure. Graphene, structure of graphene and structure of graphite. And in case of closed packed structures, we have generally two types of closed packed structures: hexagonal closed packed structure and face centered cubic. So in case of closed packing, we have two types. First one is SCP and second one is face centered cubic, FCC. Clear? So in case of simple cubic, you know that percentage occupation is 52%, and in case of BCC it is 68%. In case of diamond cubic, 34%. In case of zinc blandy, cesium chloride, we need some data in order to find the packing fractions. Without help of data, we can't say anything about the packing fractions, whether they are loose packed or close packed. Clear? So in case of SCP, we have 74%, and FCC is also 74%. So this is the percentage packing of various types of crystal structures. These structures, loose packed and close packed structures. So let us start with the basic. सिंपल क्यूबिक से स्टार्ट करते हैं, और सिंपल क्यूबिक के बारे में जो ये सारी इंफॉर्मेशन है इनको स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में की कन्वेंशनल यूनिट सेल क्या है, उसके बाद इसमें इफेक्टिव नंबर कितने हैं, इसका लेटिस का टाइप कैसा है, बेसिस कितने एटम्स का है. क्लियर? क्योंकि यू आर फैमिलियर विद द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अगर हम अपने फर्स्ट लेक्चर को ध्यान में रखें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है कि हमने देखा था कि लैटिस
पे अगर हम बेसिस रख दें तो हमें क्या मिलता था, पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बेसिस किस तरह का होता था, एक सिंगल एटम बेसिस भी हो सकता है, 2 एटम बेसिस भी हो सकता है, और 10⁻⁴ या 3 लगभग इतने मैक्सिमम बेसिस हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, पर बेसिस 1 2 3 कितने भी एटम्स हम रख सकते हैं एक लैटिस लोकेशन पे। क्लियर? तो हम अगर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, लैटिस टाइप कौन सा है और बेसिस क्या है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन की होना ही पता चाहिए, लैटिस क्या है और बेसिस क्या है। क्लियर? तो हम 1 बाय 1 इन सारों को 1 बाय 1 इनकी सारी ये जो इंफॉर्मेशन है ये गेट आउट करेंगे। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विद सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 बाय 1 सारी इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। क्लियर? तो अगर सबसे पहले बात करें तो क्या आता है, सिंपल क्यूबिक में कन्वेंशनल यूनिट सेल कैसी है। तो कन्वेंशनल यूनिट सेल कैसी है, सिंपल क्यूबिक। तो कन्वेंशनल यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, सिंपल क्यूबिक की कन्वेंशनल यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक कन्वेंशनल यूनिट सेल इस तरह से, ये लैटिस पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम एटम रख दें। अगर बेसिस सिंगल एटम बेसिस हो तो किस तरह की होगी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इस तरह की। हर लैटिस लोकेशन पे एक एटम बेसिस रखा हुआ है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पोलोनियम एग्जांपल होता है, और एज लेंथ हमने इसके लिए रखी है यूनिट सेल क्यूबिक है ए। कन्वेंशनल यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन में डाल दें अपनी पहली। पहले हम किसके लिए गेट आउट कर रहे हैं, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम लिख देंगे और 1 बाय 1 ये सारे पैरामीटर निकालते जाएंगे। क्लियर? तो हम पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक। क्लियर? तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक कन्वेंशनल यूनिट सेल इज सिंपल क्यूबिक। क्लियर? सो नेक्स्ट एन इफेक्टिव निकालेंगे कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखें तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए, बट इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना है, कैसे देखेंगे कि जो ये वाला एटम है ये इसके इधर भी ये कुछ इस तरह से 8 यूनिट सेल है इसके, यहाँ बैक में भी फ्रंट में भी। तो ये कुछ इस तरह से है कि ये 8 यूनिट सेल इस एक कॉर्नर के एटम को शेयर कर रही है। क्लियर? तो अगर हम एम इफेक्टिव निकालें तो एक एटम का इफेक्ट इसमें कितना हुआ, 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 8 इसको शेयर कर रही है। तो एक के हिस्से में कितना आया, 1/1/8 पार्ट उसका। तो एन इफेक्टिव कितना हो जाएगा इस केस में, 8 एटम टोटल है और एक का कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो ये हो जाएंगे 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हुए, 1। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये तो है कन्वेंशनल यूनिट सेल। क्लियर? और कन्वेंशनल और प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है, बेसिक कि कन्वेंशनल यूनिट सेल प्रिमिटिव हो सकती है। क्लियर? बट प्रिमिटिव यूनिट सेल कन्वेंशन हो ये नेसेसरी नहीं है। समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं एक बार कि प्रिमिटिव में क्या पता करने जा रहे हैं कि प्रिमिटिव में और कन्वेंशनल यूनिट सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, जिसमें
हमने बताया था कि एन इफेक्टिव वन हो, ठीक है। तो एन इफेक्टिव वन नहीं होता, उसमें लैटिस पॉइंट, इफेक्टिव लैटिस पॉइंट वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्रिमिटिव यूनिट सेल में? प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होना चाहिए? इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स, इफेक्टिव लैटिस पॉइंट शुड बी वन, ठीक है। लैटिस पॉइंट वन होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना ही आना चाहिए कि इफेक्टिव लैटिस पॉइंट वन क्यों होना चाहिए, इफेक्टिव नंबर वन क्यों नहीं हो सकता? क्लियर? क्योंकि देखो लैटिस क्या होता है? इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स, सिर्फ पोजीशंस का। पॉइंट मींस कोई एटम नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स है, इमेजिनरी फ्रेमवर्क है पॉइंट्स का। क्लियर? अब हम उस पॉइंट पे देखो इस तरह का मान लो, अगर हमने क्या लिया है, लैटिस लिया है, ठीक है, इस तरह का लैटिस लिया है, तो अगर इस लैटिस पोजीशन पे हम बेसिस रखेंगे तभी तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगी। तो बेसिस क्या होता है? बेसिस क्या होता है? एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। क्लियर? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम यहाँ पे एक सिंगल एटम बेसिस ही रखें, ये तो नेसेसरी नहीं है ना कि एक सिंगल एटम बेसिस ही हो। यहाँ पे हम 2 एटम्स बेसिस रख सकते हैं, 3 एटम्स का रख सकते हैं, 4 का रख सकते हैं, किसी कितने का भी रख सकते हैं, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हम मतलब रख सकते हैं, मतलब ये नहीं कि हम जाके रखते हैं, हम किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं इस तरह से, कोई एटम उठाया और हमने रख दिया लैटिस पोजीशन पे, ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये क्या है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में है, उनको हमने किस तरह से इंटरप्रिटेट कर रखा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे पॉइंट्स का हमने जाल लिया, हमने एटम 1 बाय 1 रखे, ऐसे फंसाए 1 पोजीशन पे, ऐसा थोड़ा ही होता है। ये क्या है कि जैसे नेचर में वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल्स हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, आयरन है, पोलोनियम है, सिलिकॉन है, whatever type you are going to take, various types of crystals भी है, ठीक है। तो हर क्रिस्टल की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमने ये इस तरीके से समझ रखा है कि भाई इस तरह से है क्रिस्टल में, मतलब पीरियोडिसिटी होती है और ये इस तरह का होता होगा क्रिस्टल में कि हर एटम की पर्टिकुलर लोकेशन होती होगी, उस पे एटम रखा होता होगा इस तरीके से, ठीक है। दिस इज अंडरस्टैंडिंग। जस्ट लाइक कि सर न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ मतलब दिया, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने खुद ने बनाया ग्रेविटेशनल लॉ, खुद ने नहीं बनाया उन्होंने जस्ट ये प्रकृति में एग्जिस्ट कर रहा है, उन्होंने जस्ट इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके खुद की उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा होता होगा, इस तरह से हुआ है, फिर उसको समझाने के लिए एविडेंसेस दिए, ठीक है, उसको सेटिस्फाई किया, अपनी पहले स्टेटमेंट दी, फिर उसको समझाने के लिए अपने क्या दिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस प्रस्तुत किए, फिर वो सेटिस्फाई हुआ, तब जाके लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ यस इट इज ट्रू, इट हैपेंस लाइक दिस, ये ऐसे ही होता होगा कि हर ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो ऐसे ही पक्का होता होगा कि भाई कोई फोर्स है जो खींच रहा है उसको। क्लियर? ऐसा तो नहीं कि सर आइजैक न्यूटन ने इस तरीके से उनको बनाया, खुद बनाया इस ग्रेविटेशन। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं, हम बनाएंगे, हम इस तरीके से ये कर रहे हैं, इस पे हम रख रहे हैं लैटिस पॉइंट्स पे, इट एग्जिस्ट्स ऑलरेडी, ये हम समझने के लिए, इट इज आवर इंटरप्रिटेशन कि किस तरीके से हमने इंटरप्रिटेट करना है इन चीजों को। क्लियर? तो अगर हम इसकी बात कर रहे थे, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स क्या होंगे कि इफेक्टिव लैटिस पॉइंट 1 होना चाहिए, इफेक्टिव एटम कुड बी ग्रेटर देन 1। अभी हम देखेंगे आगे कुछ ऐसे केसेस आएंगे जिनमें प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम्स ग्रेटर देन 1 होंगे। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत से लोगों को होती है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफेक्टिव जो एटम है वो 1 होना ही होना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी। व्हाट इज नेसेसरी? नेसेसरी इज दैट कि इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट शुड बी 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 1 होने चाहिए, क्योंकि बेसिस और मोटिव नॉट नेसेसरी कि सिंगल एटम हो, वो 2 एटम्स भी हो सकता है, 3 एटम्स भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। क्लियर?
तो ये माइंड में रखना चाहिए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 1 होने चाहिए। क्लियर? सो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इसमें क्या हो गया 1। तो इस केस में तो कोइंसिडेंटली क्या हो गया कि जो कन्वेंशनल यूनिट सेल है और प्रिमिटिव यूनिट सेल है दोनों सेम है, वही है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कौन सी है अपनी, यही है सिंपल क्यूबिक। और एनिफेक्टिव प्रिमिटिव में कितने हैं, प्रिमिटिव में एनिफेक्टिव कितने हैं, वही है 1। एनिफेक्टिव इन केस ऑफ प्रिमिटिव इज 1। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं कि नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स दैट सराउंड्स अ पर्टिकुलर एटम। एक एटम के कितने नियरेस्ट उसके एटम्स हैं। क्लियर? तो इस केस में कितने हैं, अगर हम इसको अपना ओरिजिन लेके नियरेस्ट एटम फाइंड आउट करें तो नियरेस्ट एटम इसमें कितने हैं। अब देखो नियरेस्ट हम ऐसे, ये नियरेस्ट है या ये नियरेस्ट है या ये नियरेस्ट है, हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस पता कर लें, ये डिस्टेंस पता कर लें, जो डिस्टेंस कम हुई वो नियरेस्ट हो गया। समझ रहे हो ना ये बात को? तो हम इसके लिए पहले डिस्टेंस देखते हैं कि ये सारी डिस्टेंस हम पॉसिबल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर जो जितने पे होगा वो हम देख लेंगे अकॉर्डिंगली कितना। ये ए इसकी एज लेंथ है। क्लियर? तो अगर ए एज लेंथ है, ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई, तो ये बॉडी डायगोनल कितने का होगा, सिंपल ज्योमेट्री से आप कह सकते हो ये 90 पे क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये ए है, ये ए है, ये कितना होगा √2a, √2a होगा ऑब्वियसली। अब एक और केस है इसमें, इस क्यूब का बॉडी डायगोनल की लेंथ को निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे काम आएगा इसलिए पहले निकाल लेते हैं अपने। ये बॉडी डायगोनल होगा। ठीक है, जैसे किसी रूम में इस कॉर्नर से इसके उस कॉर्नर तक, ठीक है, तो वो बॉडी डायगोनल होगा उस केस में। तो यहाँ पे ये वाला होगा बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ कितनी आएगी, इसके लिए थोड़ा इसको विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये लेंथ कितनी है। तो देखो ये वाली लेंथ कितनी है, ये इसकी डायगोनल लेंथ है √2a ही है, और ये कितनी है a, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2 + 1 मतलब √3a, तो ये आ जाएगी √3a। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसका फेस का डायगोनल है, जो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी है, फेस डायगोनल लेंथ कितनी है √2a। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी है, किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी है √3a। क्लियर? उसके बाद क्या देखते हैं हम, बॉडी डायगोनल की देख ली, इसकी देख ली, और क्या हो सकता है कि इसकी एज पे हो, एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ है a। ठीक है, एज में भी हो सकता है, अब एज के मिडिल में भी हो सकता है, बॉडी डायगोनल के मिडिल में भी हो सकता है, और फेस डायगोनल के मिडिल में भी हो सकता है, इट में हैपन। तो इस केस में तो सिंपल यही है। तो अब देखो इन तीनों में से बॉडी डायगोनल पे कोई एटम है, इसके पे है, ये रहा बॉडी डायगोनल पे, इसके एज लेंथ पे है ये रहा, और इसके फेस डायगोनल पे है ये रहा। तो यहाँ तो इजीली कह सकते हो कि √2a, √3a, √a में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है a। ठीक है, तो a मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ऐसी a डिस्टेंस पे इसके कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स इसको सराउंड कर रहे हैं, तो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि a डिस्टेंस पे कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना कि इसका फेस का जो डायगोनल है उसकी लेंथ है √2, बॉडी डायगोनल की लेंथ है √3। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे इसके नियरेस्ट नेबर्स की। तो नियरेस्ट नेबर, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं थोड़ा समझने के लिए। नियरेस्ट नेबर बना रहे हैं अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर निकाल रहे हैं इसके कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं। ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं,
फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो देखिए, क्योंकि हमने ये एक यूनिट सेल ली है, ठीक है, क्रिस्टल में ऐसा थोड़ी कि एक सिंगल यूनिट सेल होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल रिपीटेड इन 3 डायमेंशन। इस डायमेंशन में भी होगा एक ए डिस्टेंस पे, यहाँ एक एटम मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। इस डायमेंशन में इसको रिप्रोड्यूस करें तो यहाँ पर भी ए डिस्टेंस पे होगा एक एटम। अगर इस डायमेंशन में रिप्रोड्यूस करें तो ए डिस्टेंस पे होगा एक एटम। और कोई पॉसिबिलिटी है कोई पॉसिबिलिटी? तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। ये कह लो कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हो गए? 6। तो यहां से हम लिख दें कोऑर्डिनेशन नंबर या फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हो गए? 6। क्लियर? और डिस्टेंस कितनी है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की? मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? इसकी एज लेंथ है a, क्यूबिक एज लेंथ a ले रखी है हमने। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इज a। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नियरेस्ट नेबर। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन से है? अब देखो 3 डिस्टेंसेज आई थी, एज की, बॉडी डायगोनल की, सॉरी फेस डायगोनल की एंड बॉडी डायगोनल की। तो ये नियरली कितनी आती है? 1.41 एंड दिस इज 1.76 या 4, आई एम नॉट श्योर, 1.7 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? और ये हो गई 1 है, हो गई ये। तो इसके बाद नेक्स्ट कितनी आनी चाहिए? √2a डिस्टेंस पे कितने एटम्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर में। क्लियर? तो सेकंड नियरेस्ट नेबर में हम देखते हैं कि कितने हुए। तो यहां इसको इरेज कर दें, सेकंड नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करते हैं कितने हैं सेकंड नियरेस्ट नेबर। ठीक है, सेकंड नियरेस्ट नेबर we are going to find second nearest neighbors. I tried to make the diagrams neat and clean if possible. तो हम क्या कर रहे हैं? सेकंड नियरेस्ट नेबर, मतलब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस एटम को चलो डिफरेंस